We have got a participant of the event as Sahrish Akhtar for the motion. Give a huge round of applause for the participants in the debate competition. Next we have Aqidat Tazeen for the motion. That is both that. Next we have got Sheikh Malaika. She will be against the motion in English. You can take the seat. And next we have got Abdullah Farooq sir against the motion in English. From the Hindi part we have got Urba Batul for the motion Hindi. And we have got Nazia Fareed for the motion Hindi. Rajab Afridi against the motion Hindi. And Saklev Diwan against the motion Hindi. These are the participants of the debate event. That is the anti-ragging week. The anti-ragging week is celebrated from 12th to 18th August 2023. And first of all, we are starting this event. Today is regarded as an anti-ragging day on 12th of August of every year. So we are organizing it with a debate competition, and they will be just discussing about some topics. And the topic will be that अगेंस्ट वाले से या अगेंस्ट वाले को फॉर वाले से सवाल करने का मौका मिलेगा जो उनका बात कही गई है उसके ऊपर। इस तरह से तो दोनों में डिबेट खत्म रहेगा। उसके लिए जो रूल्स है सेकेंड राउंड के वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, यानी एक लाइन का सवाल पूछ सकेंगे और उसका जवाब सिर्फ 30 सेकंड में देना है मिडिल राउंड का। तो टाइमर सेट करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाना चाहूंगा सहरिश अख्तर टू स्पीक फॉर द मोशन इन इंग्लिश। I will be please welcome Sahrish Akhtar from MBBS 34 batch to be speaking for the motion. Say no to ragging. Abide by rules. Juniors must not deserve ragging. Yes, you heard me right. We are very aware of these statements. We can see and hear these statements and apprentice. It has just shifted to new ways as we live in this Gen Z era where everything has new ways. For example, a new type. Good morning everyone, my name is Sheikh Malaika and I will be speaking against you. Firstly, I would like to describe what this topic is about. We are not talking about whether ragging is wrong or right. We have already declared that it's a menace and it should be stopped. What we're talking about, however, is whether it's increasing or not. And I would like to say that it is not increasing at all. We have data to prove it. And I would like to talk about that data further. But for now, I would like to say that ragging takes the joy of being in a college. It creates an atmosphere of fear and hesitation and insecurity. So it should be anything. But firstly, I would like to talk about what ragging started with. Ragging started in army and medical colleges as a friendly time. By the 1960s, there was no violence, only friendly background. In 1980s, some instances of violence were being reported. By 1990s, ragging reached its peak. By peak admission of a student in a medical college, it must be made clear to the student that if a complaint is received against him or her, he is bound to answer to the institution, and if the answer is not satisfactory, he can be expelled from the college. With due respect, I would like to add that if action is not taken by the institution, then my honorable dignitaries sitting here who are the administration of this college can be penalized too. I will conclude with just two examples in the recent past. When the 33rd batch was new in this medical college, there was an anonymous message sent to the office of the principal. The entire administrative machinery came into work at My name is Nazia Fareed. She is speaking for the motion Hindi. So I would like to ask what are the state of conducts which are going to be followed now. Because as we know that in debate we are not supposed to use papers more than thrice. But here my opponents are using paper more than thrice. So can we use paper, sir? Alright, thank you. आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। हम आज रैगिंग जैसे एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आमतौर पर हम रैगिंग से क्या समझते हैं? हमें लगता है रैगिंग कोई भी सीनियर अपने जूनियर से के नए
अभी इंडिया और श्रीलंका में देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें रैगिंग के केसेस में राइज की, तो इफ दिस इज अगर ये राइज नहीं हो रहा है, 2013 के बाद हमें देखने मिला 75% 75% बढ़ोतरी रैगिंग के केसेस में इंडिया में। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो गुजरात जैसे राज्यों में रैगिंग के केसेस 3 गुना तक बढ़े हैं। और वहीं अगर जब हम बात करें बिहार, यूपी, कर्नाटक, हमारे बैचमेट्स रैगिंग लेने गए, जबकि कोई रैगिंग लेने नहीं गया था। वहाँ पर एक सीनियर के भाई आए हुए थे, वो वहाँ गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि अगर तुम तुरंत वहाँ से उनको नहीं निकालते हो तो तुम कल प्रिंसिपल ऑफिस आओगे। और मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाके एप्लीकेशन साइन किया और जमा किया कि सर वो केस नहीं था, दूसरा केस था। तो हम ये बोल सकते हैं कि केएमसी में रैगिंग होता ही नहीं। दूसरा, उसके बाद अर्जुन ने कहा था कि लेगेसी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लेगेसी ये मेंटेन करेगी या आगे लेके जाएंगी लेगेसी रैगिंग में? नहीं, अभी बोलेंगे नहीं लेगेसी आगे नहीं करेगी। ये लोग टॉपिक पे ही स्टिक नहीं है कि रैगिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। हम लोग इस बात पे इस मुद्दा पे बहस कर रहे हैं कि रैगिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, और ये इस मुद्दा पे बहस कर रही है कि रैगिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फारूक सर ने जो मेरे साथी हैं उन्होंने कहा अनिता सर बिल्कुल सही बात है। हमारा ही बैच था जो अनिता सर, नीलेश सर, दानिश दाजी सर, मैं बहुत स्पेसिफिक कर दूंगा, 1 बजे रात को हमारे हॉस्टल आए थे। उन्होंने सारा मैटर ये किया। उसके बाद जो गिल्टी थे वो एक एनिवर्सरी से उनको भी उन्होंने बोलने के लिए किया जाता है। उसके बाद और ये भी बोलिए समाज है वो पीटना है वो अलग केस है और रैगिंग अलग केस है, दोनों ही अलग केस है, दोनों को मिलाइए मत। इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि रैगिंग और साथ कि रूल्स की बात कर लेते हैं तो 2009 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रूल बनाया था और उसको फॉलो किया सबसे पहले तमिलनाडु ने। उन्होंने 1997 में पहला स्टेट था जो एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाया। उसके बाद महाराष्ट्र में मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जहां पर 6 मेडिकल विद्यार्थियों को सस्पेंड किया गया। वो जो अपने घर वालों की एक परेशानी पर रोता सिसकता था, मैं जानती हूँ। पर जब मैंने उसे पक्की से लड़के हुए देखा, मेरा दिल कुछ यूं सा बोला। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था उसे, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था उसे, वो सो गया एक दास्तान कहते कहते। दोस्तों, मैं उनका पसंद एमसीए थोड़ी बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एंकर सबका चौथा जो कहानी अभी आप सबने सुनी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये उन 119 बच्चों के दोस्तों के जज्बात है जिन्होंने अपने पिछले 2 साल में जान गंवाई। और उन सबके माँ बाप जो अभी सिसकते रोते किसी कोने में बैठे हुए हैं, उनका उन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन उन 1000 बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा जिन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने छोड़ दिए? इस सब डर की वजह से उनके साथ गलती किसी कम्युनिटी की नहीं, गलती इंसान के अंदर की। क्यों ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े? क्यों ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उसको ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरना पड़े कि वो दोबारा कभी उस चीज से उभर न पाए? कहानी तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बताऊं तो 20 अगस्त 2022 तमिलनाडु के शहर में 2 नौजवानों ने अपनी जिंदगी गंवाई। क्यों? आज वजह आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई राह नहीं दिखाता, यहाँ किसी को कोई राह नहीं दिखाता, मुझे गिरा कर तुम समझ सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। पहली बात कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को इतना सप्रेस किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सुसाइड कौन करते हैं? वो दिल करते हैं या जिनमें करेज होता है? और दूसरा पॉइंट कि मैंने जैसे कहा कि वाइन यानी दारू पिलाकर लोग बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं। तो ये डेटा है जो कि
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे बैठ कर भी पूरी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, आधी बात सुनते हैं। दो जवाब है। Whether ragging was justified or that ragging two seniors do it for their own pleasure and कि कमिटीज और जो कुछ है वो मेनली ऑन पेपर है। तो जो यहाँ पे स्क्रीन पे डॉक्टर प्रियंका मैम ने दिखाया था और एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड के चेयरपर्सन यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? ऑन पेपर है या ये कोई सच्चाई है? हमको जानना है। मेरे को जो नजर आ रहा है ये पेपर है या ये सच्चाई है? मैं आपको ये बताते चलूं कि शायद आपने भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। जब मैंने ये शुरुआत में कह दिया था कि मैं ये ग्लोबल टॉपिक है, आई एम नॉट सेल्फिश इनफ टू टॉक अबाउट माय कॉलेज एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मैंने ये भी मेंशन किया है कि अब रैगिंग के तरीके मास्क कर दिए गए हैं अलग-अलग फॉर्म्स पे। आई कैन नॉट स्टिक टू द पॉइंट दैट वेदर रैगिंग इज टेकिंग place or not. I just said now it has been masked in different forms. That is why it is appearing that it's declining, but it is not. रिफ्रेशमेंट भी आप लोग